السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کے پاکستان اسٹڈیز کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج مورخہ 18 جولائی 2024 سیکنڈ چیپٹر۔ یہ جو دو ٹاپک ہیں آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے۔ سیکنڈ ٹاپک کے ہمارے کا یہ نام ہے اور یہ جو ہمارا عنوان ہے یہ فرسٹ ٹاپک ہے۔ ان دونوں کا جو کمپیریٹیولی اسٹڈی ہے آج ہم ان دونوں کو اکٹھے ڈسکس کریں گے۔ بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق، بیسک فنڈامنٹل رائٹس ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ 1973 کے آئین میں بیسک فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں بیٹے، سب سے پہلے میں نے لاسٹ لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے کیا ہیں۔ آج ہم اس طرف نہیں پڑھیں گے۔ میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کرتا جاتا ہوں۔ 1973 کے کل جو آئین کے آرٹیکل ہیں 280 ہیں، اس میں سے کچھ جو پہلا چیپٹر ہے، جو چیپٹر نمبر 1 ہے، وہ ہمارا جو ہے بیٹے اس کے کچھ آرٹیکلز یعنی 1 سے لے کر 40 آرٹیکلز تک یا 1 سے لے کر آرٹیکل نمبر 28 تک وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ چیپٹر نمبر 1 ہے، 280 آرٹیکلز ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے ہم نے کہاں سے اخذ کرنا ہے بیٹا؟ سب سے پہلے یہ جو ہے ہمارا 1973 کے آئین میں بیسک فنڈامنٹل رائٹس کا جو بیٹے ہمارا ٹاپک ہے، وہ دراصل ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے ہی لیا ہے۔ اس لیے اس کے جو پہلا چیپٹر کے کچھ آرٹیکلز ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ وہ ہیں کون کون سے؟ آج ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ بیٹے پہلا ہے، کسی بھی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریاست، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلی بات، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو امپلیمنٹ کروانا، لاگو کرانا، پروسیس میں لے کے آنا۔ کسی بھی شہری کو بنیادی ضروریات زندگی کی جو تکمیل ہوتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ کون پرووائڈ کرتا ہے بیٹا؟ یہ اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے، جس کو ہم اردو میں ریاست کہتے ہیں۔ کسی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شہری کو جس کا جو بھی مذہب ہے، رنگ، نسل جو بھی ہے، اس کو اس کے زندگی کے حق سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ریاست محروم نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی زندگی کے اوپر اس کو اپنی زندگی آزادی کے ساتھ جینے کا پورا حق حاصل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی بھی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، نو اریسٹ۔ آپ کسی بھی شہری کو وجہ بتائے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی پولیس ہو یا اس طرح کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کسی بھی شہری کو بغیر وجہ بتائے کہ آپ کو اس جرم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اریسٹ کر رہے ہیں، کسی وجہ بتائے بغیر، ریزن بتائے بغیر کوئی بھی ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی ادارہ وجہ بتانے کے ساتھ ساتھ یا پولیس ڈپارٹمنٹ کسی بھی شہری کو اریسٹ کرے گا تو ود ان 24 آورز اس شہری کو مجسٹریٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے اس کو لانا یا پیش کرنا ضروری ہے۔ کسی شہری کے سابق جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ نہ ہو کہ 10 سال پہلے اس کا ایک کیس چلا تھا، پھر کیس اس کا نال اینڈ وائڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب 10 سال کے بعد دوبارہ کوئی اٹھے اس کے اوپر کیس کر دے، پھر اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی شہری کو اریسٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ بلکہ ایک کیس جو ایک شہری کے اوپر ایک مقدمہ تھا، تھرو پراپر چینل، تھرو دا کورٹس کے چینل کے تھرو، عدالتوں کے تھرو، ایک عدالت نے اگر اسے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے تو دوبارہ اسی کیس میں اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کہ ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے۔ کسی فرد کو ایک ہی جرم میں 2 ٹائمز اریسٹ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی جرم اس نے کیا ہے فار ایگزامپل، تو اس کو 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ایک ہی جرم میں، یعنی کہ ایک فار ایگزامپل ایک عدالت نے اس شہری کو فار ایگزامپل 10 ایئرز کی کیا سنائی؟ قید سنائی۔ اس نے 10 سال اپنی قید پوری کی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شہری کو دوبارہ اسی کیس میں ری اریسٹ کروا دیا جائے۔ ہر شہری کو پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن کی، نقل و حرکت کی، جہاں وہ جانا چاہتا ہے لیمٹس کے اندر رہ کر، ہر شہری کو اپنا بزنس کرنے کی بھی اجازت ہے، ٹرانسپورٹیشن کرنے کی بھی اجازت ہے، نقل و حرکت کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہر شہری کو پرامن اجتماع کرنے کی
मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कोई भी रियासत, कोई भी आम शहरी या कोई भी इंसान किसी भी शहरी को पुरअमन इज्तिमा करने से नहीं रोक सकते, हाँ उसका कोई ही मज़हब क्यों ना हो, कोई ही उसका मसला क्यों ना हो। अगर पुरअमन है तो रियासत के शहरी का बेसिक फंडामेंटल राइट्स में आता है। आगे बेटे, हर शहरी को अंजुमन या यूनियन बनाने का मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अब कैसे रिक्शे वाले अपनी अंजुमन बना सकते हैं, इसी तरह बिजनेसमैन अपनी अंजुमन बना सकते हैं, शॉप्स वाले, गारमेंट्स वाले, दुकानों वाले, हर डिपार्टमेंट अपनी यूनियन बना सकता है। वो इस मकसद के लिए बनाई जाती है ताकि जहाँ कहीं पर भी उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर वो वायलेट होंगी, उनकी खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर क्या होगा, वो शहरी पुरअमन एहतजाज के ज़रिए रियासत से अपना वो हक जो है वो क्या कर सकें, मनवा सकें। हर शहरी को तिजारत, बिजनेस यानी कारोबार, तिजारत या कारोबार या कोई भी पेशा अपनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कोई शहरी रेडी लगा सकता है, अपनी शॉप खोल सकता है, कोई भी बिजनेस जो इल्लीगल नहीं है, गैर न नॉन एथिकल है, न इल्लीगल है, न गैर कानूनी है, न गैर अखलाकी है, सो कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। हर शहरी को तकरीर करने की, यानी जिसको आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। किसकी बेटे? फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हुक्म आसान हो जाए, सॉरी अजान की वजह से मैं लेक्चर रोक दिया। अब बेटे, हर शहरी को तकरीर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक चीज़ और एक टर्म्स एंड कंडीशन और एक शर्त का होना ज़रूरी है। वो उसकी स्पीच ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि उसका जो मज़हब है, उसका जो मसलक है, वो किसी दूसरे के लिए नागवार गुजरे, और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में किसी भी रियासत के किसी भी शहरी को लॉयल्टी टू द स्टेट या स्टेट नैरेटिव के ऊपर उसको किसी भी शक्ल में लॉयल्टी, कोई भी शहरी रियासत का, किसी भी रियासत का कोई भी शहरी इस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच या इस तरह का बयान जारी नहीं कर सकता जैसे लॉयल्टी टू द स्टेट चैलेंज हो, यानी उसकी वफादारी रियासत के साथ चैलेंज हो जाए। सो पुरअमन और बड़ी अच्छी और जो एक शाइस्तगी वाली और अच्छी गुफ्तगू है, पुरमज़ गुफ्तगू है, वो कर सकता है। ना वो एंटी स्टेट होगी, ना वो एंटी मज़हब होगी। मैं शॉर्टकट 2 टर्म्स बता रहा हूँ, यानी रियासत के ख़िलाफ़ भी नहीं होगी उसकी गुफ्तगू फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में, ना किसी दूसरे मज़हब वाले के वो खिलाफ होगी कि जिससे जो मजहबी मुनाफरत है, जो मज़हब के मामलात हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर रियासत के शहरी एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल या कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो। आगे आते हैं बेटे, पॉइंट नंबर 10, हर शहरी को अपने मज़हब के प्रचार का पूरा हक हासिल है। यानी एक बात फिर मैं बता दूं, मज़हब के प्रचार का पूरा हक हासिल है, लेकिन बशर्त ये कि लिमिट के अंदर है। प्रचार कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरा मज़हब ठीक है, आपका मज़हब गलत है। तबलीग कर सकता है, प्रीच कर सकता है विद लिमिट्स, अपनी हदूद व कयूद के अंदर रहकर, किसी पे तनकीद किए बगैर, हुस्न खुल्क। अल्लाह ने कुरान में कितनी अच्छी बात की, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। अगर आपने किसी को, अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह की तरफ ही बुलाना है तो हिकमत अमली कभी भी हाथ से ना जाने दे। सो इसको हर शहरी को जायदाद खरीदने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, वो प्रॉपर्टी बना सकता है, लेकिन वो इल्लीगल ना हो। किसी भी शहरी को जायदाद के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कोई भी रियासत अगर एक शहरी की ज़मीन या कुछ एकड़ या कुछ मुरब्बे उसकी मलकियत है, तो रियासत का कोई भी शहरी उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि रियासत उसको शहरी समझते हुए, बराबर के शहरी समझते हुए, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का पूरा क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी शहरी के जायदाद को जो प्रोटेक्शन देनी है, वो रियासत की बेसिक फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है। हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मुलाजमत का हक हासिल है। मिनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम्स कम्युनिटी है, उनकी भी सीट्स होनी चाहिए। सो बिला इम्तियाज़ सलूक किया जाए कि जिस तरह अगर मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम मुल्क है, तो उसके अंदर नॉन मुस्लिम शहरियों को भी जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसी तरह जॉब्स के मौके, जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द जॉब प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है, जिस तरह के एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हर शहरी को उसकी ज़ुबान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तमाम शहरी से बिला इम्तियाज़
मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यानी देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ये रिलीजियस, कलर, जात पात, रंग, नस्ल की बुनियाद के ऊपर कोई भी शहरी एक दूसरे से निचला या आला नहीं है, बल्कि ऑल द पीपल बीइंग ए ह्यूमन, ऑल द पीपल आर इक्वल। सो बेटी ये हमारा टॉपिक था, बेसिक फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये कंप्लीट हुआ। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो है जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है बेटे, 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा लें। ये मैंने लिखा, प्लीज सी दिस क्वेश्चन या दिस लेक्चर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स ऑन वाइट बोर्ड। सो हम यहाँ से मूव करते हैं यहाँ तरफ, इसकी तरफ, क्योंकि नीचे लिखना मुनासिब नहीं था, आपको शायद नजर ना आता। पहले रुका 1973 के आइन की, पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब क्या पढ़ रहे हैं बेटे, उसी का सेकंड पोर्शन 1973 के आइन की इस्लामी दफात क्या है बेटा। जो सबसे पहली दफा है वो ये, अल्लाह की हाकमियत। इसका क्या मतलब है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, सिर्फ एक ज़ात का हुक्म माना जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सो शिर्क की हमने क्या करनी है बेटे, नफ़ी करनी है। यानी इसका मतलब ये है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह में अल्लाह की हकमियत होगी। इंसान ये समझे मेरा ओहदा, मेरी कुर्सी, मेरा मनसब, मेरी अल्लाह की दी हुई, मेरे अल्लाह की दी हुई मेरे पास अमानत है। कुछ दिनों के बाद ये मेरी इवन की सांसें ज़िंदगी की भी अल्लाह की दी हुई अमानत है। सो मेरा ओहदा, मेरी कुर्सी, मेरा मनसब, ये सब अल्लाह की दी हुई अमानत है। जब अल्लाह चाहेगा, सो असल इख्तियार अल्लाह की हकमियत में किसका है, असल अख्तियार अल्लाह का है, असल बादशाही अल्लाह की है, असल शहनशाही अल्लाह की है। सो इंसान नैब होने के नाते से कुछ दिनों के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आया है, जो कि अल्लाह ने उसको दी हैं, जो कि चंद दिनों की मेहमान है। सब इंसान अल्लाह के मोहताज है। इसमें हाकिमियत में आप ये लिखेंगे और कोटेशन में आप ये लिखेंगे, हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। यानी शिर्क की नफ़ी करनी है आप। मुसलमान की तारीफ, मुसलमान की तारीफ ये है कि मुस्लिम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आपने बुक से बेटा देख लेना है। तौहीद के ऊपर भी उसका ईमान हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खत्म नबूवत के ऊपर, खत्म नबूवत के ऊपर ईमान का क्या मतलब है बेटा, खत्म नबूवत के ऊपर ईमान का ये मतलब है कि मैं पूरी तारीफ ही बेटा बता देता हूँ। खत्म नबूवत पर ईमान का ये मतलब है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। जब तक कोई भी मुसलमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान की रोशनी में कतई मुसलमान नहीं हो सकता। सो मुसलमान कौन है, जो तौहीद, रिसालत, मलाइका, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान रखने के बाद तौहीद, और पहला नुक्ता तौहीद है, इसके बाद जो मैंने बयान किए वो है, और आखिरी नुक्ता ख़त्म नबूवत है। खुलासा कलाम में मैं ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर 1973 के आइन में, यानी 1974 में आईने पाकिस्तान, यानी 1973 के आइन में दूसरी क्या हुई बेटे, आइनी तरमीम हुई। इस आइनी तरमीम में क्या किया गया, ये लिखा गया कि वो तमाम मुस्लिम्स इन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले बेटा और जो बात आपने याद रखनी है, जहां पर जो MCQ में पूछा जाता है, 1902 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई, ऑन विच डेट द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव बीन पास इन 1973। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, वो ये पूछा जाता है 1973 के आइन के अंदर मुसलमान की क्या तारीफ लिखी गई। बेटे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं बेटे, वो तौहीद, रिसालत, मलाइका, अंबिया सबको डिस्कस करते हैं। वो एक गलती करते हैं, वो ख़त्म नबूवत या ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनकी तारीफ क्या हो जाती है बेटा, क्रॉस हो जाती है। वो ये समझते हैं हमने डेफिनेशन तो ठीक लिखी। इसके रिलेटेड कौन कौन सी एनुअल पेपर में बेटा आती हैं। 1902 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुई बेटे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर C.A लिख रहा हूँ या कंप्लीट लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेटे कब हुई, 1974। वो कब हुई, 1974 में। किसकी गवर्नमेंट थी, Z.A. भुट्टो की। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, Z.A. भुट्टो।
ZA भुट्टो से मुराद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का गवर्नमेंट था, दौर हुकूमत था इनका। सो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मुसलमान की तारीफ ये की गई कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता वो कतई मुसलमान नहीं हो सकता। यानी कि अहमदीज़ को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। फिर जो सेकंड पॉइंट था बेटे, इसकी तरफ हम आते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ हम आते हैं बेटे। इसके तहत दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुसलमान की तारीफ यहाँ पर अहम है, और आपसे वो पूछता है कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या दूसरी जो आइनी तरमीम है वो क्या है, उसके ऊपर नोट लिखें। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है बेटा। इसके बाद मुल्क का नाम आपको पता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान रखा गया। सदर और मुसलमान बोथ शुड बी मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ऑफिशियल हमारा रिलीजियस कौन सा होगा, इस्लाम होगा। इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ दिया जाएगा। प्रमोशन ऑफ द इस्लामिक वैल्यूज़, not anti-Islamic values, only Islamic perception, Islamic philosophical statements should be promoted। So इस्लाम के बताए हुए हदूदों का यूज़ और इस्लाम के बताए जो वैल्यूज़ और अक़दार हैं उनको क्या किया जाएगा बेटे, फ़रोग़ दिया जाएगा। सो अरबी जो है क्लास 6 से लेकर वैसे 1 से लेकर 8 तक, यानी पर्टिकुलरली आपके सिलेबस कहने के मुताबिक यहाँ पर सेकेंड ईयर के मुताबिक 6 to 8 जो अरबी की तालीम है वो लाजमी करार दे दी गई। क्या मतलब, यानी अरबी यानी कुरान मजीद जो है वो सीखना लाजमी करार दिया गया। अब बेटे सूद का खात्मा, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, हमने इस्लामी दफात में फ्री ऑफ इंटरेस्ट हम रियासत को बनाएंगे। फ्री ऑफ इंटरेस्ट इकानमी का जो है हम उस कंसेप्ट को परवान चढ़ाएंगे, फ्री ऑफ इंटरेस्ट। सो इसका क्या मतलब है बेटा, वैसे भी अल्लाह कुरान में क्या कहता है, आयत कोट कर ले, यमकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह सदकात को बढ़ाता है, सूद को मिटाता है। सो जो कौम भी सूद में लतपत हो जाएगी, जो सूद को इंटरेस्ट में इन्वॉल्वमेंट जो कौम कर देती है, फिर उसका डायरेक्ट अल्लाह का उसका जो सूद को नहीं छोड़ता, डायरेक्ट अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। सो सूद का खात्मा होगा। हमने ये लिखा कि हम ऐसी रियासत का बनवा। ज़कात और उशर का निज़ाम, हमने ये कहा अगर कोई मुसलमान साहिब इस्तात है, साहिब इस्तात से क्या मुराद है बेटे, 52.5 तोले उसके पास चांदी है या 7.5 तोले बेटे क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7.5 तोले उसके पास सोना है या उसके मद्दे मुकाबिल इक्वल रकम है, तो वो 100 में से 2.5 रुपया अल्लाह की राह में क्या करेगा बेटे, खर्च करेगा। सो इस्लामी ममालिक से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। फॉरेन रिलेशंस विद अदर इस्लामिक कंट्री शुड बी गुड, वो अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी मईशत जो है वो परवान चढ़े। इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम, इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया, इसका क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था, जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, जो भी बेटे हम पॉलिसी बनाएंगे असम्बली में जाकर, उस पॉलिसी में प्लस कवानीन के निफाज में, यानी कवानीन के निफाज में और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी मेकिंग एंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस में इस्लामी कवानीन का निफाज, इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट ऑफ द इस्लामिक वैल्यूज़ को ऐड किया जाए, ताकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल का बनाने का मकसद ही यही था कि इस्लामिक वैल्यूज़ को इस्लामी कवानीन में और पॉलिसी मेकिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो असम्बली में होगी, उसके अंदर इस्लाम का जो नज़रिया है, जो इस्लाम की बताई हुई फ़िलॉसफिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो इस्लाम के बताए हुए नज़रियात हैं, उनको क्या करना है, परवान चढ़ाना है। फिर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जो मिनॉरिटीज़ के इशूज़ हैं उनका जो हकूक़ है, जो नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी रहती है पाकिस्तान में, सो किसी भी रियासत हो, खा वो इस्लामिक स्टेट हो, नॉन इस्लामिक स्टेट हो, उसके अंदर जो भी शहरी जो तादाद में कम हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी इस्लामिक जो रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, सो रियासत के ये बेसिक फंडर राइट्स में आता है कि रियासत उनके शहरियों की भी उसी तरह हिफाजत करे, उन शहरियों के यानी अक़लियतों के हकूक़ की भी उसी तरह प्रोटेक्शन दे जिस तरह के वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम करती है। सो ये नेक्स्ट सीरीज़ के साथ अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह।